Assalamu alaikum student. This is your second lecture of maths for class 7th of chapter set. Now we have representation of a set. In representation of a set means how can we write a set? We can write a set in three ways. First we have tabular method. In tabular method, we list the elements and separate it by commas. And all these elements come in the curly bracket or curly braces. Then we have descriptive method. In descriptive method, we write a set in a statement form, like set of whole number, set of natural number. As you know, student, these sets are denoted by capital letter of the alphabet, as the set of whole number is denoted by capital letter W and set of natural number is denoted by capital letter N. Now we have this builder notation form. This is the third form in which you can write a set. Here we write a set in symbolic form. First symbol we have this vertical line which we read as such that. Then we have a symbol of less than. In this symbol shows the tail to any number, so it is the less than. Then we have greater than symbol. Its mouth open shows to any number means the greater than. So it's mean you have these two symbols which shows the less than or greater than. Then we have this less than symbol and the line is coming below this symbol. This shows that this is less than or equal to. Then we have same this for greater than symbol, the line is under this symbol. This is also shows that this is greater than or equal to. Then we have oblique line. This oblique line put across a symbol which give you the meaning of that symbol negative. Means if there is an element symbol and the line put across that symbol, so that become your element not. और अगर आपके पास इज इक्वल टू का सिंबल है, इज इक्वल टू का सिंबल, और अगर ये लाइन उसके ऊपर आ जाती है अक्रॉस में, सो दैट गिव यू द मीनिंग ऑफ इज इक्वल टू नॉट. Now we have a set of numbers in two forms, tabular form and descriptive form. First we have the tabular form and some set of numbers are given. They are denoted by capital letter of the alphabet. First we have capital N and this shows your set of natural number. Then we have whole number that is denoted by capital letter W. Then we have set of integers, then odd numbers, even numbers, composite numbers and prime numbers. Then we have descriptive form. First you have learned about the tabular form of the set of numbers, then we have a descriptive form in front of these set of numbers, like set of natural numbers, set of whole numbers, set of integers, set of odd numbers, set of even numbers, set of composite numbers and set of prime numbers. Then we come on exercise 1.1 in which the question number 3, the questions are given in descriptive form and you have to change in tabular form. It's very easy to identify the questions given in descriptive form. Set of integers greater than -5. आपके पास set of integers वो लिखने हैं जो greater than -5 हो, मीन्स -5 से बड़े हों. -5 से बड़े क्या क्या होंगे? -4, -3, -2, -1 होंगे. आपके पास नेगेटिव साइन में जितना नंबर बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होगा और छोटा नंबर आपका बड़ा होगा. देन लेस देन 5. लेस देन 5 हमारे पास क्या क्या होंगे? 1, 2, 3, 4. अब हम यहाँ इंटीजर्स शो कर रहे हैं तो आप 0, 1, 2, 3, 4 लिखेंगे और ये आपके आएंगे राइट साइड पर और लेफ्ट साइड पर आप नेगेटिव नंबर्स शो करेंगे. देन सेट ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 6 मीन्स आपका ये नंबर 6 किस टेबल में आता है.
1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है और 6 अपने ही टेबल में आता है। ये आपके डिवाइजर्स हो गए। अब आपके पास ये दो क्वेश्चंस मैंने आपकी बुक के एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 से मैंने लिए हैं। इनके यहाँ पर मैंने लेटर्स जो सेट के जो है वो चेंज कर दिए, बाकी आपका काम वहीं का बुक का ही है। सही है, तो आपको एक एग्जाम्पल मिल गई है वहाँ बुक से, बाकी आपके रिमेनिंग 3 पार्ट्स रह गए, वो आप खुद करेंगे इसको मिलाकर। Then we have question number 4. In question number 4, the questions are given in tabular form and you have to change them or write them in descriptive form. First, we have 3, 6, 9, 12 and so on. Are they even number? Are they odd number? और are they multiples of 3? अगर आपके ये odd number है होते तो ये 1 से start होते और 6 नहीं होता यहाँ पर। सही है, 7 होता है यहाँ पर। देन अगर ये आपके इवन नंबर है तो ये 2 से स्टार्ट होते हैं, ऐसा भी नहीं है। अब ये नंबर कौन से हैं आपके? ये वो नंबर है जो आपके 3 के टेबल में आते हैं, तो फिर ये आपके क्या हो गए? सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3. देन वी हैव सेट E and it has member 2, 4, 6, 8 so on and 20. The last एलिमेंट इज ऑल्सो प्रेजेंट हियर, मीन्स यहाँ पर जो ये नंबर हैं वो 2, 4, 6, 8, इसके बाद और भी नंबर आएंगे और 20 तक ये स्टॉप हो रहे हैं। अब ये आपका कौन सा सेट है? आर दे इवन नंबर और आर दे मल्टीपल्स ऑफ 2? ये दोनों ही हैं आपकी मर्जी है, आप इसको कौन सा सेट लिखते हैं। या तो आप सेट ऑफ इवन नंबर लिख लें या आप सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 2 लिख लें, और अगर आप दोनों लिखना चाहते हैं तो दोनों लिख सकते हैं आप। तो वो आपका लिखने का वे क्या होगा? सेट ऑफ multiples of 2 or set of even numbers of 2 either less than or equal to 20. अब यहाँ पे स्टॉपिंग पॉइंट दे दिया है ना हमें, तो इस वजह से हमने यहाँ पर ये बात का भी जिक्र किया। Now let's see student, we have this question number 5 from your book exercise 1.1 in which you can see the sets are given in builder notation form and you have to write them in your tabular form. आपको पता है कि बिल्डर नोटेशन फॉर्म सिंबॉलिक होती है, आपकी सिंबल्स में लिखी जाती है, तो आपको यहाँ आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से सेट के नंबर्स हैं। सेट ए कर्ली ब्रैकेट x such that x is the element of capital N. कैपिटल N हमारा क्या है? नेचुरल नंबर को बताता है, मीन्स यहाँ पे जो भी नंबर है सेट ऑफ नंबर्स है वो नेचुरल नंबर है। देन x इज लेस देन और इक्वल टू 5, मीन्स यहाँ पर जो नंबर है वो आपके छोटे भी हैं और बराबर भी हैं किसके? 5 के। तो आपके पास नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 4 तक लेस देन हो गए, और अगर इक्वल करने की बात करते हैं तो वो हमारे पास 5 आ गया। अगर यहाँ पर इस सिंबल के नीचे लाइन नहीं होती तो हम अपना यहाँ 5 नहीं लिखते, वी जस्ट स्टॉप टिल 4. When they have given you this line under this symbol less than, so we have to write the 5 also here. Then we come on another set, set B. Set B question is curly bracket x such that x is the element of I. I आपका कौन सा set of number बताता है? ये आपका set of integers बताता है. Then we have here in the middle x is given. x is greater than, x की तरफ माउथ ओपन है, greater than और equal to -3, मतलब x जो है वो बराबर भी है और बड़ा भी है किससे? -3 से। -3 से बड़े नंबर क्या हो गए नेगेटिव में? -2 और -1, और अगर इक्वल की बात करते हैं तो -3 भी लिखेंगे हम यहाँ पर। देन ये हमारा नेगेटिव नंबर्स आते हैं लेफ्ट साइड पर। नाउ x इज लेस देन और इक्वल टू 3, फिर हमारे पास हम आगे जाके देखते हैं क्वेश्चन में क्या है कि x लेस देन भी है, छोटा भी है और बराबर भी है 3 के। लेस देन क्या हो गए हमारे पास? 1, 2, 3. Okay, these are the less than. Now here we have this equal to line is also given, so this become less than or equal to 3. So it means the numbers are coming 0, 1, 2 and 3. अगर ये हमारे पास यहाँ पर इस लेस देन के नीचे लाइन नहीं दी हुई होती तो हम ये स्टॉप 2 तक कर देते, हमारे पास सिर्फ 0, 1, 2 हो जाते। ओके, this is clear. I hope everyone is clear about it. Then the remaining question and included these 2 parts you will do from your question number 5, your book exercise 1.1. Then we are coming your next question, question number 6, in which your sets are given in tabular form and you have to write them in builder notation form.
सो फॉर दिस यू विल फर्स्ट आइडेंटिफाई, पहले आप पहचानेंगे कि आपके ये जो सेट ऑफ नंबर्स दिए हुए हैं ये कौन से सेट के हैं। देखो 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 से तो इवन नंबर हमारा स्टार्ट होता है। देन 3 इज कमिंग, 3 तो नहीं आता हमारा इवन नंबर में, ये तो फिर ऑड नंबर हो गया। ना ये इवन नंबर हुआ ना ये ऑड नंबर हुआ, क्योंकि 2 हमारा इवन का है, 3 5 7 हमारे ऑड के हैं, और ना ही ये नेचुरल नंबर है क्योंकि स्टार्ट भी नहीं हो रही है 1 से। तो ये हमारे कौन से हो गए सेट के मेंबर्स, ये हमारे सेट ऑफ प्राइम नंबर्स हो गए। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, दोज कम्स इन देयर ओन टेबल एंड टेबल ऑफ 1, जो अपने ही टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं, और उनके पास दे हैव ओनली 2 सेट ऑफ डिवाइजर्स। आपने ये क्लास 6 में पढ़ा होगा ना, आपके पास ये एक्सरसाइज भी होगी करने की, आपने किया होगा, याद आया आपको? बस ये वही है, यहाँ पर सेट ऑफ प्राइम नंबर्स है हमारे पास। हाउ वी कैन राइट दैम इन बिल्डर नोटेशन फॉर्म, आप कोई भी लेटर ले लें जो इसको डिनोट करे। y सच दैट y इज द एलिमेंट ऑफ p, p हमारा प्राइम नंबर को बता रहा है, तो एलिमेंट कौन से हैं यहाँ पर, ये प्राइम नंबर। फिर हमने कोमा लगाया, देन y इज लेस देन और इक्वल टू 7, ठीक है, हमने यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू 7 लिख दिया। अगर हम यहाँ पे सिर्फ लेस देन का सिंबल देते तो हमारे पास 5 आना चाहिए, लेकिन अगर 7 भी है तो हमने यहाँ अपनी लाइन लगा दी है नीचे सिंबल की, तो ये हो गया लेस देन और इक्वल टू 7। देन वी कम ऑन अनदर सेट, दैट इज योर सेट E, 1 3 5 7 9। नाउ हियर द नंबर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, देन 2 इज नॉट कमिंग, 3 5 7 9। व्हाट आर दीज नंबर, दीज आर ऑड नंबर, ये आपके ऑड नंबर है। अब ऑड नंबर के लिए मैंने कोई भी लेटर ले लिया, आप यहाँ पर x सच दैट x भी कर सकते थे, y सच दैट y भी कर सकते थे। अब मेरा दिल चाह रहा था कि z सच दैट z कर दिया, इज द एलिमेंट ऑफ o। अब यहाँ जो आपका लेटर बताएगा कि कौन से एलिमेंट के मेंबर है वो आपको आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये ऑड नंबर है। देन कॉमा z इज लेस देन और इक्वल टू 9, मतलब यहाँ पर ये जो z दिया हुआ है जो बता रहा है कि यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं, वो क्या है आपके, छोटे भी हैं और बराबर भी हैं 9। छोटे कहाँ तक हो गए, 7 तक के, और बराबर कहाँ तक हो गए, 9 तक। आई होप दिस क्वेश्चन ऑल्सो यू अंडरस्टूड। नाउ द रिमेनिंग पार्ट यू विल डू फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 6। 2 वहाँ से मैंने आपको करवा दिए हैं, 3 आपके रह गए हैं। जब आप काम करेंगे तो ये दोनों भी उनके साथ शामिल करेंगे। Now we have types of set, in which first we have subset. What do you mean by subset? It's a part of another set. Here we can see the example of 2 sets. Number 1 is B, 1 2 3 4 5, its element, and number 2 is A, set A, 1 2 3, its element. All the elements of A are present in set B, so it means set A is a subset of B. You can see the example of this circle also. Here we have 2 circles in which we have, first is your bigger circle and then you have another circle is your smaller circle. The bigger circle shows the element of set B, and the smaller circle which is inside the bigger circle, this shows the element of set A which are already present in set B. So where I have drawn these circles, the 2 circles, so the member of the smaller circle written in the set A and the members of the bigger circles are 4 and 5, just I've written, but the member of B are 1 2 3 also. This is already present in A, तो मुझे दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि B के अंदर ही सेट A है। तो हम इस तरह से आपका सबसेट शो कर सकते हैं। आगे फर्दर जब आपके पास क्वेश्चंस आएंगे यूनियन और इंटरसेक्शन के, तो वहाँ पे भी आपके पास सबसेट का ऐसा ही फिगर आएगा। We have proper subset and superset. First we have studied about this subset. Now we are coming on proper subset. What do you mean by this proper subset? It means the अगर आपके पास एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद हैं और कुछ ऐसे एलिमेंट दूसरे सेट के
जो आपके पास फर्स्ट सेट में नहीं है, एक या एक से ज़्यादा, कम से कम एक होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आपके पास सेट बी जो है 1 2 3 4 है और सेट ए जो है वो आपका 2 4 है। तो सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में है, जबकि सेट बी के कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो सेट ए से मैच नहीं करे, मीन्स उसके पास कुछ ज़्यादा एलिमेंट है। तो इसका मतलब आपका जो स्मॉलर सेट हो गया जिसके सारे मेंबर बड़े वाले सेट में हैं, वो आपका प्रॉपर सबसेट हो गया बड़े सेट का। और सिम्बॉलिकली वी कैन राइट इन दिस मैनर, आई हैव रिटर्न हियर ए इज सबसेट ऑफ बी और बी इज आ सुपर सेट ऑफ ए। तो बड़ा वाला सेट आपका सुपर सेट हो गया और जो छोटा वाला सेट हो गया वो आपका प्रॉपर सबसेट हो गया। ठीक है, आपने इससे पहले सबसेट वाला पढ़ा था, वहाँ पे भी आपके पास इसी तरह का एग्जाम्पल था। तो वो जो एक्चुअली जो सबसेट है वो डिवीजन हो रहा है प्रॉपर सबसेट में और आपके इम्प्रॉपर में। तो प्रॉपर सबसेट आपका उसी से ही मैच कर रहा है। ठीक है, चाहे आप सबसेट बोलें या प्रॉपर सबसेट बोलें, एक ही बात है। नाउ वी आर कमिंग improper subset and superset. About the proper subset, now we are coming on improper subset. Improper subset क्या है आपके पास? आपके पास दो सेट दिए हुए होंगे, जैसे कि A और B दिया हुआ है आपके पास। A के मेंबर 1 2 3 है और B के मेंबर 2 3 1 है। दिखने में ये दोनों मेंबर्स आपके और एलिमेंट एक जैसे ही है, बट द अरेंजिंग ऑर्डर आर डिफरेंट. So doesn't matter, but the members are the same. So this condition becomes the improper subset. तो A आपका improper subset हो गया B का और B is a superset of A. इसी तरह A भी आपका superset हो सकता है B का और B भी आपका superset हो सकता है A का. तो दोनों की सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंटेशन हमने आपको यहाँ बता दी है कि आपके पास इम्प्रॉपर सबसेट एक्चुअली जो है वो इक्वल सेट है. आगे आपके पास इक्वल सेट भी आएगा, वो भी आप पढ़ेंगे. फर्स्ट यहाँ पर आपके पास इम्प्रॉपर सबसेट है. तो इम्प्रॉपर सबसेट में आपके पास मेंबर्स जो है, नंबर ऑफ मेंबर्स और वो जो मेंबर्स क्या है, दिखने में कैसे हैं, वो भी एक जैसे हों, बट अरेंजिंग ऑर्डर डिफरेंट हो, कोई मसला नहीं. तो ये आपके सेट क्या हो गए, इम्प्रॉपर सबसेट. नाउ स्टूडेंट वी हैव इक्विवेलेंट सेट. ठीक है, इक्विवेलेंट सेट से नाम से तो ऐसा लग रहा है ना हमें कि इक्वल सेट का होगा. अब देखते हैं कि क्या है इसमें. आपके पास दो सेट दिए हुए हैं, ए और उनके मेंबर्स क्या है, ए बी सी डी, और बी के हैं ई एफ जी एच. ए हैज़ 4 members and B has also 4 members, but they are look like not same. ठीक है, आपके पास A के पास जो 4 members हैं वो अलग हैं और B के 4 member अलग है, मगर क्वांटिटी में तो उससे है ना, आपके उसके पास भी 4 है, इसके पास भी 4 है. तो ये आपका कैसा सेट हो गया, इक्विवेलेंट सेट हो गया. इसका मतलब आपके पास जो आपका इम्प्रॉपर सबसेट था वहाँ पर मेंबर्स की क्वांटिटी भी सेम होनी चाहिए, दिखने में भी सेम होनी चाहिए, जबकि इक्विवेलेंट में सिर्फ क्वांटिटी आपकी जो है वो सेम होनी चाहिए, दिखने में अगर डिफरेंट है तो कोई बात नहीं. तो ऐसा सेट आपका क्या हो जाते हैं, दोनों इक्विवेलेंट सेट हो जाते हैं. देन इक्वल सेट. इन इक्वल सेट वी हैव द टू सेट्स. A is equal to 1 2 3 4 and B is equal to 2 4 3 1. Again you are having this condition which you have already got in your improper subset. जब मैं आपको improper subset explain कर रही थी वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि ये आपका equal set की तरह है. तो यहाँ पर जो A के मेंबर है वही B के पास है, लेकिन इनका ऑर्डर डिफरेंट है, तो कोई मसला नहीं, ये आपके इक्वल सेट कहलाएंगे. Now we have overlapping set. What are overlapping set? Two sets are said to be overlapping set if they have at least one element common. Let's see the example. Set A has 1 2 3 4 and set B has 3 4 5. It means the sum of the members of A are present in set B and set B sum of member are present in A. मतलब A के कुछ मेंबर B के पास हो और B के कुछ मेंबर A के पास हो, चाहे एक ही मेंबर दोनों का कॉमन हो या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं कॉमन, और कुछ अलग अलग भी हो दोनों में. तो ये कंडीशन आपकी ओवरलैपिंग सेट होगी. अच्छा, आप जो है ना, अब सबसेट से कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें मिलाइएगा नहीं. सबसेट में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में होते हैं मौजूद,
जबकि दूसरे सेट के कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो पहले सेट में मीन्स के स्मॉलर सेट में नहीं होते, कुछ ज़्यादा एलिमेंट होते हैं उसके पास। मगर यहाँ पर क्या है कि देखें, ए के पास आपके पास 1 2 3 4 है और बी के पास 3 4 5 है, तो ए का 3 4 बी के 3 4 से मैच कर रहा है, मगर बी के पास एक 5 है जो कि ए में नहीं है, और ए के पास आपके पास 1 2 ऐसे हैं जो बी में नहीं है, मतलब few members or elements are similar or few are not. So this condition is called overlapping set. For overlapping set, I explain you more with the help of this figure. This two circle you can see in the figure, and the overlapping part, जो आपके दो सर्कल नज़र आ रहे हैं, दो सर्कल के दरमियान ये ओवरलैपिंग पार्ट है। एक सर्कल पे मैंने दूसरा सर्कल बनाया है, तो यहाँ पर एक ओवरलैपिंग पार्ट जो है वो आपका आ जाता है। इस ओवरलैपिंग पार्ट में वो एलिमेंट आते हैं दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास, 3 और 4, वो दोनों इसमें आ गए। एक सर्कल, फर्स्ट सर्कल आपका सेट ए हो गया, सेकंड सर्कल आपका सेट बी हो गया। 3 4 दोनों में आते हैं, वो हमने सेंटर में लिख दिया, ओवरलैपिंग पार्ट में लिख दिया। अब 3 4 के अलावा ए के पास क्या बचता है, 1 2, वो लिख दिया हमने ए सेट ए में सर्कल में, और जो बी सर्कल है वहाँ पर अब हमारे पास 3 4 के बाद कौन रहता है उसके पास, 5, तो वो हमने वहाँ पे लिख दिया। दिस वॉज योर ओवरलैपिंग सेट एग्जाम्पल। नाउ वी हैव डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट मीन्स कि ऐसे सेट जो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हो, मुख्तलिफ हो। कैसे, अब यहाँ देखिए, सेट ए है हमारे पास 1 2 3 4 और बी है 5 6। 1 2 3 4 जो आपके लिखे हुए वो 5 6 से बिल्कुल मैच नहीं करते, और ना ही 5 6 1 2 3 से मैच करते हैं। नंबर ऑफ मेंबर्स भी डिफरेंट हो रहे हैं और आपके वो दिखने में भी डिफरेंट है, तो ऐसा सेट आपका क्या कहलाता है, डिसजॉइंट। इस सेट को हमें फिगर में रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं कि हमने दो सर्कल बना दिए, एक सर्कल ए को बता रहा है, एक बी को बता रहा है। फर्स्ट सर्कल में 1 2 3 4 मेंबर्स बता दिए और दूसरे सर्कल में हमने क्या बता दिए, 5 6। दिस वॉज योर डिसजॉइंट सेट। Now we have universal set. Universal set means a set which has all the elements of other sets are present. Means एक ऐसा set जिसके पास दूसरे set के सारे element मौजूद हो। Now let's see here the definition which is given to you in this slide. A universal set is a set which contains all the element of other set. It is represented by capital letter U. ठीक है, आपका जो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने का वे है, डिनोट करने का जो वे है, वो क्या है, कैपिटल यू है, नॉट स्मॉल यू। Then let's see x, y, z. The three sets are given. X has 1 2 3, y has 3 4 5 6, and z has 5 6 7 8 9. Now all these members of three sets are present in one set, that is your universal set U 1 2 3 4 5 6 7 8 9. That's all. I hope you people have understood. Now you have learned this type of set. All these type of sets are coming in your exercise 1.2 question number 1, in which they are ask you the true and false of the statement. So you can just do these true and false easily with the help of these types of set. Student, we are coming on the review of this lecture कि हमने क्या क्या पढ़ा है आज। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट हमने पढ़ा है, टेब्यूलर फॉर्म है जिसमें डिस्क्रिप्टिव है, बिल्डर नोटेशन है, देन टाइप्स ऑफ सेट, सबसेट, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट, डिसजॉइंट सेट, ओवरलैपिंग सेट एंड यूनिवर्सल सेट।